Mr. Kedia, good having you. Thanks for joining in. मुझे पता है कि last time that we spoke, you were a bit circumspect about the whole construct of the market. Is this on expected lines, and do you think कि यहाँ से और गिर सकता है? So first of all, thank you very much for inviting me. The new lord in the town is Bharti Mittal, क्या Sunil Mittal, Bharti Airtel, Sunil. He's the new lord in the town. Or as you said, I think of course it was bound to happen, Neeraj. As we all know that it does not happen. Market कभी भी एक तरफा ऐसे नहीं चलता है. So I was more concerned about the euphoria which was happening in this market. अभी देखो वो क्या क्या नाम आने लग गए हो, महादेव और ये वो, तो देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, महादेव का नाम बदनाम ना करो. तो अभी ये सब नए नए लेकिन ट्रिक है, ये सब ट्रिक सब पुराने हैं और ये नया नया रूप बदल के नाम बदल कर ये सब मार्केट के अंदर में आते रहते हैं. So it was bound to happen, and I am happy that it is happening in this market. Market will correct itself. And that will set a trend for a new bull market or a new upswing. So, Mr. Kedia, what's your sense? How much, do you expect the pain to last for a particular period of time, or will the market need to fall, let's say by a particular number, percentage or whatever it is, before as you said, the dust settles? See, one thing is what I understand here is I don't think this is market going to crash like Europe ki मालूम पड़ा कि वो इतना बड़ा, because market is there are still froth in some because mid cap is a large 5,000 shares are there in mid cap, small cap and micro cap and all. So I'm not expecting that this market is going to crash. I am just expecting that an adjustment will happen in this market. There are many stocks which have fallen 30-40% from their peak, but they have also risen 3 times, 4 times, 300%, 400% from their bottom. So there are two ways of look at it. So I feel that maybe in some of the pocket, in some of the stocks, you will find value. Maybe already value is there, or you may find value in this week or coming week. But index, so far index is concerned, I think it will take some time to show a new high, and even those shares which have corrected also will take some time to show new high. केडिया जी, आपसे जब हमने बजट में बात की थी, तमन्ना हियर, you said very clearly कि there is going to be some kind of a pain, 10 to 15% का एक करेक्शन आ गया. मेरा सवाल ये आ चुका है कि और है, and is it also a lot of factors, we were talking about the 15th March impact, electoral bonds में किसका नाम आएगा, stress test हो रहा है, इसके बाद क्या थोड़ा stabilize होगा? मेरे को लगता है मार्केट स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा. कई पॉकेट में करेक्शन आ चुका है, कई पॉकेट के अंदर में, और ये मार्केट करेक्ट होने में थोड़ा और टाइम लगेगा. लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा मंदी नहीं लगता इस मार्केट के अंदर में कि कोई ये मार्केट कोई बहुत ज्यादा कोई क्रैश हो जाएगा, ऐसा मेरे को नहीं लगता है. और तो सेंटिमेंट थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा सा वीक ही रहेगा, और जो शेयर्स अभी रिएक्ट नहीं हुए हैं, अभी हो सकता है वो ज्यादा रिएक्ट हों मिड कैप और स्मॉल कैप में, जिनमें ज्यादा वैल्यू नहीं है, वो थोड़े ज्यादा वो अभी और थोड़े करेक्ट होने बाकी है. इसका मतलब ये नहीं कि सब जो गिर गए वो भी गिरेंगे, ये रोटेशन में चलेगा. पहले भी जब मैं बढ़ता था ना, तभी ऐसा नहीं था कि सब शेयर एक साथ बढ़ जाते थे. पहले 500 शेयर बढ़े, फिर दूसरे वेट करते रह गए, फिर दूसरी कतार आई, फिर तीसरी कतार आई. ये गिरने में भी ऐसे ही कुछ होएगा, और एक बार टाइम थोड़ा सा निकालेगा थोड़ा. Kedia, I quickly want to move on to banks. Shares of some of these PSU banks have outperformed private sector banks over the last 3 or 4 years. Do you now think it's time to rethink the trade in banks? Maybe switch to private banks and move away from PSU banks? And if yes, if you've got a preferred pick here, would be great. No, I would personally not think so. I still find PSU's bank cheaper than these private banks and all. So I think this thing will keep on continuing, and this PSU bank should keep on performing better than, I don't know better than the private banks or not, but should keep on performing better. And I think they still have more room to go. विजय जी, कौन से बैंक्स अब आपको आज कौन से आपको पसंद आ रहे हैं? पीएसयू बैंक्स, एक नोट था हाल फिलहाल में that the valuation gap has closed between public sector banks and private sector banks, and it was in that sense negative on SBI. Would you still bet on an SBI versus an HDFC, or which would be your top favorites? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फ्रैंकली मेरा बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं वॉच तो पूरे मार्केट को करता हूँ.
बराबर बात है। तो मेरे को क्या लग रहा है, आप एक चीज खुद देखिए कि ये जो भी पीएसयू जो बैंक है, जिस हिसाब से दूसरे सारे शेयर्स, सारे ने कई शेयर्स 30-30%, 40-40% गिरे हैं, पीएसयू बैंक इतना नहीं गिरे। ये मार्केट को समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब मंदी आती है, जोर से मार्केट गिरता है, कौन सा शेयर कम गिरता है। जो शेयर कम गिरता है उसके अंदर में वैल्यू है। लेकिन ये जनरलाइज इस नियम को नहीं कर लेना, हो सकता है आज नहीं गिरे कल गिर जाए, लेकिन जनरली जो आप देखेंगे तो जो पीएसयू जो बैंक है, ये अपने जैसे को बोलते हैं ना, फोर्ट को होल्ड करके रखा है। उनमें कोई क्रैश वैश नहीं आया, उनके अंदर में इतना गिरा नहीं। तो ये अपने आप में बताता है कि उनमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। तो इस बोल का मेरे को हो सकता है एसबीआई अच्छा हो सकता है और भी जो छोटी छोटी बैंकें हो। मेरा इनके अंदर में ज्यादा स्टडी नहीं है, मैं बीच बीच में कभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिया था, फिर मैं निकल गया। मेरा इनके अंदर में क्योंकि थोड़ी इनकी चाल स्लो है, और लेकिन ये आगे अच्छा करेंगे ऐसा मेरे को लगता है। विजय जी, कौन से स्मॉल कैप्स आप अभी पिक करेंगे? इनको पिक करने में आप माहिर हैं और इनको सबसे बड़ी मार पड़ी हुई है। एनीथिंग दैट यू थिंक or any space that you think needs to see or is an opportunity right now? देखिए, स्मॉल कैप का तो मालूम नहीं, जैसे कल भी जिस हिसाब से मार्केट गिरा तो ऑफ कोर्स मेरे मन में ये आने लग गया। मेरे भी कई शेयर्स है जो 25% 30% ऊपर से गिर गए। और देखिए, ये मार्केट इतना यूनिक है, हम आज ये बात कर रहे हैं, मेरे कई शेयर जो 30% गिरे हैं, उन्होंने अपना टॉप 4 महीना पहले बनाया था। तो वो 4 महीने में गिरते आए हैं। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कल ही गिरा। कल भी जब वो तूफान आता है तो उसके साथ और भी सब एक साथ बह जाते हैं, तो कल भी वो गिरे, लेकिन उनका टॉप 4 महीना पहले बन गया था। तो लोगों को ये सोचते हैं, जिस दिन निफ्टी का टॉप बनता है या जिस दिन अचानक मार्केट एक साथ 2000 शेयर क्रैश होते हैं, तब लोगों को समझता है मंदी आई है। ये मंदी 4 महीने से चल रही है। अगर आप इसी को मंदी बोलते हैं या करेक्शन बोलते हैं या रिएक्शन जो भी आप बोलते हैं, ये 3-4 महीने से अलग अलग पॉकेट में चल रही है। कल जरूर मेरे मन में आया कि मेरे कुछ शेयरों के अंदर में कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद ये टाइम आया है इनको लेने का, तो मेरे मन में ऐसा आया। लेकिन मैं उतना एडवेंचरस नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि मैं लेके फिर 5% ऊपर या 10% ऊपर मेरे से बिकता नहीं है। फिर मैं 10 साल के लिए लेता हूँ, 5 साल 10 साल के लिए। तो मेरे मन में जैसे आया कि भाई एयरलाइंस में, जैसे मेरे को लगा कि मैं कुछ मेरा स्टेक बढ़ाऊं एयरलाइन स्टॉक में, ऐसे मेरे मन में आया। मैंने किया नहीं है कुछ, लेकिन देखते हैं 1-2 दिन, 5 दिन और 7 दिन देखते हैं। हमें बताएं। Mr. Kedia, so airlines तो hardly any representation, but airlines and airports and related spaces, या सिर्फ airlines? नहीं, मेरे को लगता है पूरा टूरिज्म के जो भी शेयर्स आप समझो, इंडिया के अंदर में नया थीम चालू हो रहा है आप इंडिया के अंदर में, बाकी सब थीम चलने वाली है, लेकिन ये थीम थोड़ी सी निग्लेक्टेड रही है। तो इसमें चाहे आप एयरपोर्ट पकड़ लो, इसमें चाहे आप एयरलाइंस पकड़ो, या इसके साथ उनके जो सपोर्ट करते हैं वो आप पकड़िए, कोई चाहे वो होटल हो या रिजॉर्ट हो या जो भी हो। मेरे को लग रहा है ये सेक्टर सालों से, दशकों से ये निग्लेक्टेड रहा है। तो अब जिस तरह लोगों में एक चेतना जगी है इंडिया घूमने की और ट्रैवल इन इंडिया या जो हो रहा है, तो ये ठीक करने चाहिए, ये ऐसे लगता है। लेकिन मेरा मेजर, हाँ, तो मेरा कुछ रिजॉर्ट में है, कुछ एयरलाइन में मेरा जो अपना इन्वेस्टमेंट है, एयरपोर्ट पे नहीं है मेरा इन्वेस्टमेंट एज ऑफ डेट। Very lastly, Mr. Kedia, आपने बोला कि aviation looks good to you because it's all tourism pitch that's doing well. Railway is also on that list because if you're buying airline stocks, railways have a little more exposure then in that case. And if yes, 2 stocks, if railways, if not, but 2 stocks that you like beyond aviation that you've already told us. No, first of all, railway stock could be better, could be good investment. I am not invested in any railway stock, and I have personally invested so far. Airlines is concerned, I have invested in Indigo. It is on the public domain. Everybody knows that I have invested in Indigo, and I don't know it is going to rise or fall. I don't know. I'm not recommending what I have done for myself that I'm discussing. So I like such kind of stocks. Railway could also be a better bet, but I'm not following them. आपकी लिस्ट में लेकिन क्या है जो जब थोड़ा स्टेबलाइज होगा आप खरीदेंगे? आई एम श्योर यू ड्रॉन अप अ मेंटल लिस्ट। उसके 3-4 तो चॉइसेस बताइए कि क्या है उस लिस्ट में। नहीं, मेरे पास में देखो ज्यादा पैसे है नहीं खरीदने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा हाँ वो आप कुछ देंगे तो मैं फिर कुछ डिसाइड करूंगा। मतलब लुई विटॉन बैग भी मैं ही खरीदूं, आपको फंड भी मैं ही करूं, सर ख्याली पुलाव से आगे निकलिए। नहीं, मेरे को देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जो है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, मैं शायद आपके साथ भी पहले जो इंटरव्यू किया था उसमें तमन्ना जी कहा था कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप इंडिया को इमेजिन नहीं कर सकते, इंडिया ग्रो कर सकता है। मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक मेरे को 10 साल की तेजी लगती है मेरे को।
तो आप उसमें कोई देखिए जो शेयर 25-30-35% गिर गए हैं ऊपर से, उनको ये समझ के चलिए कि हो सकता है और 20% गिर जाए। नहीं गिरे तो अच्छी बात है, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई बिफोर वी रैप अप एंड थैंक यू विजय केडिया जी, कोई पोएम, कोई गाना हमारे इन्वेस्टर्स के लिए? वही, किसी को भी ना समझ में तू आए, तू बढ़ता बढ़ता क्यों गिर जाए, ये 90% लोग क्यों पैसे गवाए, जब सोचा समझा खूब समझ में आए, जो लेके गए बैठ वही तो है कमाए, ये 90% लोग बैठ नहीं पाए। ये खाली लॉन्ग टर्म का खेला तमन्ना जी, यहाँ पर और कुछ नहीं है। अच्छे शेयर्स को चुनो और उनमें बड़ा इन द सेंस जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना उसका रेशियो वाइज एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट करो और लॉन्ग टर्म के लिए करो। इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा मंत्र नहीं है। दैट इज द मंत्र, खरीदने का वही एक साधन है। That is the Vijay Kedia mantra. Thank you so much, Mr. Kedia. Always a pleasure and real fun speaking with you.